So yesterday we discussed glucagon as endocrine hormone, right? So today we'll be discussing insulin as endocrine hormone, right? So in the previous lecture we discussed the structure of pancreas. अगर हम pancreas की बात करें, it consists of special type of cells called islets of Langerhans, right? Islets of Langerhans contains two types of cells, alpha cells and beta cells, right? Yes. These alpha cells secrete a hormone called glucagon. What? Glucagon. Glucagon. And beta cells secrete a hormone Insulin. called insulin, right? So this glucagon we have discussed it in the yesterday's lecture, and today we'll be discussing this insulin right in detail. अगर हम इंसुलिन की बात करें, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन. क्या है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है. व्हाट इज पेप्टाइड हार्मोन? इट कंसिस्ट्स ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स व्हिच आर कनेक्टेड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, राइट? एंड दैट इज द पेप्टाइड हार्मोन. If we see this insulin, its role is glucose homeostasis in your body. It maintains the normal blood glucose level. And in the previous lecture we discussed glucagon, that is called a hyperglycemic hormone. That is to say, this is the hormone that causes the increased blood glucose level. अगर आपकी बॉडी में कभी कभार ग्लूकोज लेवल कम होती है, at that time glucagon acts and it resumes the normal blood glucose level, right? So this insulin acts differently. Likewise, this glucagon acts on the liver cells. Same, this insulin will also act on the liver cells and also some other cells called adipocytes. What? Adipocytes are the cells of adipose tissue. Adipose tissue, or it is a tissue, special type of tissue in your body which stores lipid, fat. ये आपके बॉडी में फैट स्टोर करता है, लिपिड स्टोर करता है, राइट? एंड इसके सेल्स को कहते हैं एडिपोसाइट्स, एंड लिवर सेल्स आर कॉल्ड हेपेटोसाइट्स. यू गेटिंग इट? As the insulin is secreted in your body in hyperglycemic condition, जब आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, at that time this insulin is synthesized and secreted, and then it acts on two types of cells, the liver cells and the adipocytes. And what do this insulin in these cells? They convert glucose into glycogen, right? And that process is called glycogenesis. उसको क्या कहते हैं? Glycogenesis. Glycogenesis is the conversion of glucose into glycogen in liver and adipose tissue. You getting it? Yes, sir. Now see, in hyperglycemic condition आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो, ठीक है? In this condition, now our body has to make a homeostasis. इसको ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रखना है इन हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशंस में. तो इसमें क्या हो गया, ये जो बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के, ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है? ये इंसुलिन क्या, दिस इंसुलिन विल एक्ट ऑन एडिपोसाइट्स, राइट, एंड हेपेटोसाइट्स. तो यहां क्या करता है, ये ग्लाइकोजन जो होता है, ये ग्लूकोज को किसमें, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा. यू गेटिंग इट? एंड जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस. तो ग्लाइकोजेनेसिस से क्या हुआ, ये जो इंक्रीज ग्लूकोज था आपके ब्लड में, ये अब नॉर्मल स्टेट में आएगा, नॉर्मल कंसंट्रेशन में आएगा, एंड होम्योस्टैसिस ऑफ ग्लूकोज विल बी मेंटेन्ड. ठीक है? अब देखो, यू कैन सी हियर
once this hormone acts on the adipocytes and hepatocytes, you can see here in the flow chart, enhances cellular glucose uptake and utilization. तो ये इंसुलिन क्या करता है आपके सेल्स पे एक्ट करके, ये सेल्स में क्या करता है, सेलुलर अपटेक. ये ग्लूकोज जो है, सेल्स नाउ विल टेक द ग्लूकोज. आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ, अब इसको मेंटेन रखना है. तो इस कंडीशन में ये जो इंसुलिन है ये सेल्स को स्टिमुलेट करता है सो दैट दी सेल्स विल टेक पिक अप द ग्लूकोज. ठीक है ना, दे विल ईट द ग्लूकोज. यू गेटिंग इट? ग्लूकोज जब यूटिलाइज होगा, यू गेटिंग इट, अपटेक होगा, तो उससे क्या होगा, ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा, कम होगा. ठीक है ना. एंड रिजल्ट रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट्स. तो ब्लड टू हेपेटोसाइट्स से क्या होगा, मूवमेंट होगा, ग्लूकोज मूव होगा. देखो दिस इज एनी वेसल, ब्लड वेसल. यहां से अब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है, राइट. यू कैन सी ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीजिंग. This insulin will act on these hepatocytes. तो यहां से क्या करेगा, ब्लड से ग्लूकोज निकाल के इन सेल्स को देगा, एंड दैट इज कॉल्ड सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज. ठीक है ना, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज. एंड जब सेलुलर अपटेक होगा, इफ दैट अपटेक टेक्स प्लेस इन द लिवर एंड हेपेटोसाइट्स, एंड दैट ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस. उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस. नाउ सी अगेन, जब सेलुलर अपटेक हुआ ग्लूकोज का, यूटिलाइज, सेल्स के अंदर यूटिलाइज हुआ, वहां ग्लूकोज से एनर्जी निकाला गया, तो यू कैन सी इससे क्या होगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा. ग्रेजुअली इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया. जब आपके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया. क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपोग्लाइसीमिया इज ट्रिगर्ड बाय व्हिच हार्मोन, इंसुलिन. एंड इफ यू इन द यस्टरडे ग्लाइकोगन वाज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. ठीक है ना, इसका अपोजिट इफेक्ट, इंसुलिन का अपोजिट इफेक्ट ग्लाइकोगन करता है. ठीक है ना. तो ग्लाइकोगन आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देगा, एंड ये इंसुलिन आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम कर देगा. ठीक है ना. डिक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, एंड इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया. ठीक है ना. नाउ यू कैन से व्हिच हार्मोन इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, insulin. And which hormone is hyperglycemic hormone, glucagon. You getting it? Yes, and you have to remember for NEET, these hormones maybe sometimes may be asked. Insulin is a amino acid hormone, peptide hormone. You getting it? And protein hormone, and the most appropriate will be peptide hormone. You getting it? Yes, and you will also have to see, if maybe asked in the exam, which hormone is hypoglycemic, that is insulin. And which hormone controls the hyperglycemic condition? If there is increased blood glucose level, to which hormone will act? Insulin. You getting it? If there is decreased blood glucose level, अगर कम हुआ आपके बॉडी में ग्लूकोज, तो कौन हार्मोन आप, ग्लूकागॉन. यू गेटिंग इट? तो ये जो दो हार्मोन से इनका अपोजिट इफेक्ट है. यू गेटिंग इट? एंड यू कैन सी, अगर आपकी बॉडी में प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो, तो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया रहा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हमारे बॉडी के जो सेल्स है, दे आर नॉट यूटिलाइजिंग द ग्लूकोज, एंड इन दीज कंडीशंस द ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज्ड. ये जब बहुत देर तक रहता है, उस कंडीशन में एक डिसऑर्डर होता है, एक डिजीज होता है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस. व्हाट? डायबिटीज मेलाइटस. ये डायबिटीज मेलाइटस कब होता है? जब आपके बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम. ठीक है ना. इन कंडीशंस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है
आपके इन कंडीशंस में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ये यूरिन से बाहर निकलता है, ठीक है ना, तो किडनी में जाएगा, किडनी के थ्रू ये यूरिन से बाहर आएगा, एंड दैट कंडीशन वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड ग्लूकोसूरिया। उसको क्या कहते हैं, जब यूरिन से ग्लूकोज निकलेगा उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोसूरिया। यू गेटिंग इट? एंड नाउ सी, और एक कंडीशन होता है जब हाइपरग्लाइसीमिया रहता है हमारे बॉडी में फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड टाइम, हमारे सेल्स ग्लूकोज अपटेक नहीं करते हैं, एट दैट टाइम अनदर कंडीशन हैपेंस, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज आर हार्मफुल कंपाउंड्स। अगर आपकी बॉडी में ये एक्यूमुलेट होते हैं तो यू सफर नंबर ऑफ प्रॉब्लम। यू गेटिंग इट? तो अब ये डायबिटीज में क्या होता है, हमारे जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं इनमें क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या होता है, सेल्स डू नॉट टेक द ग्लूकोज। यू गेटिंग इट? सेल्स ग्लूकोज नहीं लेते हैं, और इसकी वजह से ये जो ग्लूकोज एक्यूमुलेट होता है, ठीक है ना, इसका मेटाबॉलिज्म होता है ब्लड में, तो इससे कीटोन बॉडीज बनते हैं, और इससे ये जो एक्सेस ग्लूकोज होता है ये लॉस होता है थ्रू यूरिन, ठीक है ना। एंड इन दीज पेशेंट्स हु आर डायबिटिक, इनको एक इंजेक्शन दिया जाता है, उस इंजेक्शन को कहते हैं इंसुलिन इंजेक्शन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दीज पेशेंट्स आर गिवन इंसुलिन इंजेक्शन। एंड इंसुलिन इज द ओनली हार्मोन, इंसुलिन जो होता है इट इज द ओनली हार्मोन दैट मेंटेन्स द नॉर्मल ग्लूकोज होम्योस्टैसिस, ठीक है ना। ग्लूकोगॉन भी मेंटेन रखता है, बट इंसुलिन का रोल क्या है कि अगर आपके बॉडी में प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, your cells are not taking glucose, not utilizing glucose, and the glucose is accumulated in the blood. अब इस कंडीशन में पेशेंट को अगर इंसुलिन इंजेक्शन करते हैं तो इंसुलिन से क्या होगा, इंसुलिन से क्या होगा, इंसुलिन विल एक्ट ऑन दीज हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, तो एक्सेस ग्लूकोज जो होगा इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लाइकोजन। तो इसका मतलब है इंसुलिन विल ट्रिगर अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है ना। तो फॉर अ नीट पॉइंट ऑफ व्यू, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्लूकोगॉन जो होता है दैट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय टू प्रोसेसेस। वन इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस, व्हाट, glycogenolysis, geno and glyconeogenesis, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, फ्रॉम ग्लाइकोजन, ठीक है ना। जब आपके बॉडी में ग्लूकोज कम हुआ, ग्लूकोज लेवल कम हुआ, तो अब आपको बॉडी को होम्योस्टैसिस मेंटेन रखना है। उसके लिए उस कंडीशन में क्या करना है कि हेपेटोसाइट्स पे ये ग्लूकोगॉन एक्ट करेगा और वहां ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज में। तो आपके बॉडी में फिर से ग्लूकोज नॉर्मल होगा, रिज्यूम होगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। And another condition is glyconeogenesis. Sometimes when we are on fast, in the fasting time, क्या होता है कि ये जो हमारी बॉडी में जब when we suffer the energy नहीं होती हमारी बॉडी में, ठीक है ना, तो at that time non carbohydrate sources like fats, ठीक है ना, वहां से उस फैट्स को वो फैट कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज में, एंड उस कंडीशन को उसको कहते हैं ग्लूकोनेओजेनेसिस, ठीक है ना। एंड दिस इज ऑल अबाउट इंसुलिन। अब यहाँ में और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि ये प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया जो है, व्हाई, ये कैसे होगा। कैन यू इमेजिन विच सेल्स विल बी डिफेक्टिव ड्यूरिंग डायबिटीज mellitus? बीटा सेल्स। तो मे बी दीज बीटा सेल्स जो हैं इनका ट्यूमर हो सकता है, द कैंसर ऑफ द बीटा सेल्स, द ट्यूमर ऑफ द बीटा सेल्स, एंड देयर इज सम डिफेक्ट इन द बीटा सेल्स।
कोई डिसऑर्डर होगा, कोई डिफेक्ट होगा, ड्यू टू विच दीज बीटा सेल्स आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट इंसुलिन। अगर इंसुलिन सिंथेसाइज एंड सिक्रीट नहीं हुआ तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन विल नॉट बी रेगुलेटेड, ठीक है ना, वो रेगुलेट नहीं होगा। उस कंडीशन में ये हाइपरग्लाइसीमिया जो है इट विल रिमेन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। जब ये बहुत देर तक रहेगा, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उस कंडीशन को कहेंगे डायबिटीज मेलाइट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब है डायबिटीज मेलाइट्स, डायबिटीज उन पेशेंट्स को होता है जो इंसुलिन सिंथेसाइज नहीं करते, जिनके अंदर इंसुलिन सिंथेसिस और सिक्रेशन नहीं होता है। वो इसीलिए नहीं होता है, इनके पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं इनमें या कैंसर होगा, ट्यूमर होगा, कोई और प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो इंसुलिन सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, कंटिन्यूअसली उनके ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहता है, ठीक है ना। एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंसुलिन, ठीक है।